آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا نا کہ انہوں نے کبھی اپنی بیگم کے شرٹ پہنی ہو، ان کا شلوار پہنا ہو، برا پہنا ہو، ایسی کبھی حرکت دیکھی ہے آپ نے؟ برا تو تب پہنو جب مرد کے بوبس ہیں، پینٹی تب پہنو جب آپ کے بال کو سہارا دے سکے. میں کھلے الفاظ میں بتا رہی نہیں تو ہوں. وہ باس کو سہارا دیتی ہے نا. مین ہو کے عورتوں جیسے کپڑے پہنے اور عورت ہو کے مرد جیسے کپڑے پہنے. لہٰذا آپ کے اللہ کے رسول نے آپ کے اوپر اور آپ کے خاوند کے اوپر جو کراس ڈریسنگ کرتا ہے لعنت بھیجی ہے. آپ کے جو دادا شریف تھے ان کے 2 نہیں 1 بال تھے، آپ مانیں گی؟ آپ کے دادا کی 4 تھے؟ 4 تھے بالکل. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربھوں سمیت یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشنی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ ویڈیو کو بڑھانا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں جب سے ساحل بھائی نے وہ والی حدیث کو سب کے سامنے کھول کر رکھا ہے جس میں کہا گیا ہے رسول اللہ اپنی بیگم کے کپڑے پہنتے تھے، تب سے مومنوں میں ہڑکمپ مچا ہوا ہے. ہر ایک مسلم چینلوں پر اس کی چرچا ہو رہی ہے اور وہ سبھی لوگ اس حدیث کو توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. مسلم اسکالر ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ایک جگہ خود کہا ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے کپڑے پہننا حرام ہے. اصل میں یہ کوئی اکلوتی بات نہیں ہے جو کانٹرڈکٹ کرتی ہو. اسلام کی کتابوں میں لکھی ہر ایک بات کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتی ہی ہے. اسی لیے قرآن دنیا کی اکلوتی ایسی کتاب ہے جسے ماننے والے بھی اس کتاب میں لکھی باتوں کو اپنے اپنے ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط بتاتے ہیں. اسلام میں کہنے کے تو سارے مسلم ایک ہیں، پر مسجدوں کے سامنے لکھے بورڈ بتاتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھ سکتا ہے. کافی دیر سے گپ شپ آپ لوگوں کی سن رہا تھا، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کا لب و لہجہ بھی بڑا اچھا ہے اور مناسب ہے، اور آپ جیسی لیڈی اس کی بات کر رہی ہیں اور وہ اس چیز کو کہہ رہی ہیں دیٹ از آل اوکے. آئی ایم امیزڈ بائی دی وے. میں سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے کبھی ایسا نہیں کیا اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ دیکھیں یہ جو کام آپ کے والد صاحب نے کبھی نہیں کیا، آپ کے دادا جی نے کبھی نہیں کیا، آپ کی فیملی میں کبھی کسی نے نہیں کیا، وہ کام آپ یہاں بیٹھ کے صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہو میرے ابو نے میری امی کی کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان چادر باندھ کے موٹے کپڑے کو ٹویرا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ چادر باندھنے کے نیچے کپڑے اپنے ہی پہنے ہوئے تھے. آپ کے والد نے آپ کے والد نے سردی کی وجہ سے ہو سکتا ہے سردی ہو چلے جی گرمی کی چادر، اچھا وہ کڑائی والی چادر آپ کے سوری دوبارہ سے ناؤ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ٹو نو، کنفرم کریں مجھے، دوبارہ کنفرم کرائیں. کوئی بھی ایسی چادر جی مجھے جنیرک بات نہیں چاہیے اس وقت، مجھے یہ چاہیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد صاحب کو کس میں دیکھا ہے وہ بتائیں مجھے. ایک دفعہ تھوڑی نہ دیکھا ہے، ان کی زمینیں تھیں اور ایک انسٹنس بتائیں آپ نے اپنے والد کو اپنی والدہ کے کس کپڑے میں دیکھا؟ والدہ کی نہیں، چادر میں دیکھا ہے. مجھے نہیں یاد کس کی تھی. ہم ماشاءاللہ بہنیں بھی چادر میں دیکھا، کھیتوں میں کام کرتے تھے اور ساتھ میں جب ہاتھ پیر گندے ہو جاتے تھے اچھا نہاتے وقت پہن لیتے تھے، چلو دیٹ از فائن. لیکن ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ اپنے والد کے کمرے میں گئی ہوں نوک کر کے اجازت لے کے، وہ والدہ کے ساتھ بستر بیٹھے ہوں، آپ نے کبھی ان کو نہیں دیکھا نا کہ انہوں نے کبھی اپنی بیگم کے شرٹ پہنی ہو، ان کا شلوار پہنا ہو، برا پہنا ہو، ایسی کبھی حرکت دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں ایسا تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اوکے. اب آپ کے نبی اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں لکھا ہوا تھی اس میں، سوری میں نے بیڈ ایکسپلیسٹ کر دیا، یہ میری غلطی ہے، معذرت خواہ. صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، بستر بیٹھے ہوئے تھے، وی ڈونٹ نو. عمر بن الخطاب آیا، دروازہ کھولا اور وہ عائشہ کے لباس میں تھے. ابو بکر آیا، دروازہ کھولا، وہ عائشہ کے لباس میں تھے. عثمان آیا تو انہوں نے فوراً عائشہ کا لباس چینج کر لیا. اب مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے سن کے؟ تو دیکھو نا انہوں نے سوچا ہوگا کہ لوگ آئی جا رہے ہیں، پہلے سن کے کیسا لگ رہا؟ اگر آپ کے والد صاحب نے کبھی ایسا نہیں کیا
तो खुदा ऑब्वियसली की कसम तो नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को मेरी शर्ट आती है तो मैं पहना दूं, बेशक पहन लो, कोई मसला चलिए, नहीं आप है। क्रॉस ड्रेसिंग को अलाउ करती हैं, बेहतरीन। चलिए, पहले ही बोल दिया आप था उन्होंने आजम साहब। बेहतरीन हो गया। चलिए, ये तो अच्छी लेकिन बात है। लेकिन ये कह रही है कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए। मैं पूछा कि अगर क्रॉस ड्रेसिंग को आप अलाउ करती है तो ब्रा पैंटी पहनने में क्या दिक्कत है? फिर इस पे आप बात करिए इनसे। ब्रा तो तब पहनो जब मर्द के बूब्स हैं, पैंटी तब पहनो जब आपको बॉल को सहारा दे सके। मैं खुले अल्फाज में बता रही नहीं तो वो हूँ। बॉस को सहारा देती है ना। ऑब्वियसली आपने मर्दों के ब्रीफ्स नहीं देखे, इतने इसी तरह के तो होते हैं। हाँ मैंने तो देखे हैं भाई, मैं मैरिड आप हूँ, उनका पता ब्रीफ नहीं। पहनती है अपने खावंद का? आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? नहीं मैंने तो उनका कभी नहीं पहना। आपके खावंद जो कच्छा पहनते हैं, ये बताएं। क्या पहनते हैं? सॉरी, कच्छा, पैंट के नीचे कच्छा पहनते हैं? पैंट के नीचे पहनते हैं। हाँ पहनते हैं। पहनते हैं ना, शुक्र है। मैं कहा शायद कच्छे के बगैर ही निकल रहे होते हैं। तो कच्छे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निक्कर की तरह का और एक होता है ब्रीफ। तो जो कटा वाला होता है ना, उसमें भी एक हाँ, छोटा कटा वाला होता है। तो अच्छा। कटे वाले में और आपकी पैंटी के अंदर क्या फर्क है? कोई फर्क तो नहीं है, सेम ही होते हैं। है ना, उसमें एक प्रॉपर स्पेस दी होती है, कपड़ा ज्यादा दिया होता है, जबकि पैंटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा। चले, हम पैंटी को और ब्रा को साइड पे रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई इतराज नहीं है, राइट? नहीं इसमें क्या एतराज की बात है? क्या हो गया? अगर किसी ने मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से कपड़े नहीं है, या कोई दाग लग गया या कोई ताकत लग गई, या कोई बात नहीं, दाग नहीं, नॉर्मल आता है पहनने। असल में साहिल भाई ने जो हदीस सामने रखकर कहा है कि रसूल अल्लाह अपनी बेगम के कपड़े पहनते थे, ये मोमिन लोग उस हदीस को झुठला नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए जलीबियां बना रहे हैं। वरना इन लोगों को जरा जरा सी बात पर इतना ऐतराज होता है, आप सब लोग जानते हैं। आपके नबी ने कहा था, अल्लाह की लानत हो जो मर्द होकर औरतों वाला लिबास पहनता है और जो औरत होकर मर्द वाला लिबास पहनता है। वो उन मर्दों के लिए है जो कि औरत वाली वजाहत इख्तियार करते हैं, ठीक है? वजाहत की बात, ड्रेसेस की बात हो रही है, आप हदीस देते हैं वजाहत वाली, मैं आपको हदीस दे देता हूँ कपड़ों वाली। मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने तो शुरू से जो हमें टीचिंग्स मैं मिली आपको हैं, बता रहा हूँ ना, ऐसी हदीस नहीं है। चलिए मैं सर्च जरूर कर लूंगी। हदीस ऐसी नहीं है, लेकिन देखें, कुछ हदीस के रावी होते हैं और कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुरान पाक है, उसकी एक आयत होती है तो उसकी आगे 10-10 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है, 20-20 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती वो हैं। मेरा काम नहीं है ना, वो आपका काम है ना। आपका टॉपिक बड़ा ही जो है ना वो फजूल है, इसकी कोई बेसिस ही नहीं है और आपका एतराज ही नहीं कोई बनता बात इस नहीं पे। सर, आपके नबी ने लानत भेजी अल्लाह की, तो अल्लाह की लानत है ना। हाँ, अल्लाह की लानत है जो औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे। वजाहत की बात ही नहीं हो रही, हराम बात हो रही है कि आपने कपड़े पहनने हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें। देखिए, बावजह मजबूरी ये पहन आपके लिया, पास दो तरह की नहीं, आपके पास बावजह मजबूरी भी नहीं है, थोड़ी देर लेकिन मजबूरी नहीं मोहम्मद की। कोई देखो मसला नहीं। अब मैं- देखो मेरे हस्बैंड ने पहने आप- मेरे कपड़े, सुने, आप जो बात मेरे कर रही हैं हस्बैंड बुखारी, पहने, लेकिन वो सुने, लड़की तो नहीं होगी ना। अरे बहन जी सुने, आप बात करें बुखारी 5546 की, मैं आपके सामने खोल देता हूँ ताकि हम दोनों एक ही बात पे क्लियर हो जाए, ठीक है? ये देखें, ये ले, आप इसकी बात करें, कंफर्म करें आप इसी चीज की बात करें। इसका तर्जुमा दिखाएं। तर्जुमा इतनी सी अंग्रेजी का भी तर्जुमा दिखाना पड़ेगा? अल्लाह ने कर्ज किया है उन पे जो कि औरतों की तरह हरकतें करते हैं और उन औरतों पे जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। हाँ राइट। Right, आप इसकी बात करें। पहन लिया, उसमें हरकतें कहाँ से आती हैं? आपने वो हदीस पढ़ ली थी जो आप कह रही थी, अब ये दूसरी हदीस पढ़ लें। इंग्लिश में ना इस पर और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कह दिए लिबास, ड्रेस। आपने जो पहले दी थी, जो आप पहले दी थी इमिटेशन, ठीक है, हरकत करना, मुतशाबिहात लाना किया है, जो मुतशाबिहात करे मर्द होके औरतों की और औरत होके मर्दों की, ये मुतशाबिहात वाली हदीस है। ये हदीस जो है ये कपड़ों की हदीस है, मैन होके औरतों जैसे कपड़े पहने और औरत होके मर्द जैसे कपड़े पहने। लिहाजा आपके अल्लाह के रसूल ने आपके ऊपर और आपके खावंद के ऊपर जो क्रॉस ड्रेसिंग करता है लानत भेजी है। क्रॉस ड्रेसिंग, मेरी बात सुने, बीवी के कपड़े पहनना किसी मजबूरी के तहत रूम में कोई मसला नहीं। इसका क्रॉस मतलब ड्रेसिंग है पे अल्लाह मियां ने लानत भेजी है। औरत के कपड़े पहन के बाहर घूमता है, कोई लड़की मर्दाना कपड़े पहन के नहीं लिखा हुआ बाहर बाहर,
नहीं लिखा हुआ बाहर घूमना, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपके वालिद साहब के भी आपके अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के, अपनी वालदा के चादर लेके नहाया करते थे, तो अल्लाह ने लानत भेजी है। वो अपनी चादर में क्यों नहीं नहाया करते थे, तो इस पे भी अल्लाह ने लानत भेजी है आपके नबी ने। तो बेसिकली आपका पूरा खानदान अल्लाह की लानत में मुलव्विस है आपके नबी की वजह से, पता है आपको इस बात का? अब इस लेडी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी ये मानेगी नहीं। असल में इनके नबी ने जितना कुछ भी कहा है वही बात कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा काटी गई है। एक तरफ कहते हैं औरत और मर्दों को एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वहीं दूसरी ओर वो खुद पहनते हैं। हमें ये लानत कबूल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके छोटे दिमाग में ना ये बात नहीं बैठनी आदम, जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आप जो बता रही हो लिखा नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा है। आप जो बता रही है मैं ना कमरे में, क्या नबी पाक बाहर जाते थे वो लिबास पहन के, बताएं जरा। मेरी बहन, नबी पाक बाहर जाए ना जाए, हदीस में ये नहीं लिखा बाहर जाना, हदीस में लिखा है लिबास पहनना। इट हैज नथिंग टू से लिबास पहन के बाहर जाएं। बहुत सी अहादीस लिमिटेड बहन तो आप दिखा देना जिनकी आगे बहन, एक सेकंड बहन बात सुने। मैं अगर ये कहूं कि आपके जो दादा शरीफ थे उनके 2 नहीं 1 बॉल थे, आप मानेंगी? आपके दादा के 4 थे? 4 थे, बिल्कुल मान गई ना। देखिए, दैट्स द होल थिंग। सो द होल आइडिया इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट कि किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कि वो चीज प्रूव एविडेंशियली ना की जा सके। करेक्ट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मेरे कहने से आपके दादा का 1 बॉल नहीं हो सकता और आपके कहने से मेरे दादा के 4 बॉल नहीं हो सकते। हमें एविडेंशियली प्रूव करना है इस बात को। जिंदगी गुजारी है एडम, और हमने जो सीखा है वहां से मैं आपको बहन एक्सप्लेन। देखिए, हमने बहुत सारा कुछ सीखा है कि नबी पाक के ऊपर औरत कूड़ा फेंकती थी, ये भी नहीं कि लिखा। हमने सीखा है कि हजरत खदीजा की, सुने नहीं, ये कूड़े वाली स्टोरी हाँ, है ये ही हमने ही रॉन्ग किया। सब्र करना, हमने ही रॉन्ग किया। हमसे पहले सारे कुत्ते भौंकते थे। हमारे 3 साल पहले जब तक हमने बोला नहीं ये बात, है उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी। मुस्कान रिलैक्स, ठीक है चल। 3 साल पहले हमने ये गेम शुरू किया, उसके बाद लोगों ने भौंकना बंद किया। सुने, आपकी खदीजा की उम्र 40 साल है, ये भी हमने बोलना शुरू किया। अब लोग बोलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ हमें खदीजा की एज नहीं पता, ठीक है। ये हमने बताना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया है कि खदीजा की एज 40 साल कहीं पे नहीं लिखी। आई स्टार्टेड सेइंग दैट, मैं 1 साल से बात कह रहा हूं। सो ये जो तुमने कहा कि तुम्हें बचपन से जो चीज पढ़ाई गई है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बचपन से जो चीज पढ़ाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी एविडेंस मांगा नहीं अपने स्कॉलर से। सो मुस्कान, मेरी बात पे यकीन ना करो या करो, इररेलेवेंट। एटलीस्ट जाके अब अपने स्कॉलर से इस चीज का रेफरेंस मांगो, वरना आपके अल्लाह ने आपके हस्बैंड के ऊपर और आपके वालिद दोनों के ऊपर कर्ज भेजा, लानत भेजी है। सो एटलीस्ट बजाय इसके कि मैं से फॉल्स टाइप की बहस करो, कहो कि हाँ जी एडम साहब, मैं एडम भाई कुछ भी कह लो, मैं जाके इसके ऊपर रिसर्च करूंगी और या तो आपको डाटा लेके आके दूंगी या मैं आपकी बात को एक्सेप्टेंस करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है? हमारी अहादीस की, हमारी कुरानी आयात की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन दे दें। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। दिखाएं, कहां से दी है? अपने पास से, अपने पास से, जिसका खदीजा 40 साल की बनाई हुई है वहां से, जिस किताब में खदीजा 40 साल की है उस किताब में लिखा है ना? नहीं 40 प्लस बनाई हुई है, 40 की नहीं बनाई हुई। ओके, तो फिर मुझे रेफरेंस देना, किस किताब को खोलूं? एडम, ये देखें, इस बात को, आज का जो टॉपिक है ना उस पे मैं बात कर रही हूँ। वो जो आप खदीजा वाली बात कर रही है ना, डेफिनेटली मुझे सर्च करना पड़ेगा। अरे बहन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कपड़े पहनने वाली, ये सामने जो हदीस है इसकी बात कर रहा हूं। मुझे इसका रेफरेंस दें कि ये बाहर निकलना है इसके अंदर शामिल, बगैर बाहर निकले लानत नहीं है, वो बताएं। आपको खुद नॉलेज की कमी है। अरे बहन, मुझे नॉलेज की कमी है, तू इजाफा कर देना, मुझे रेफरेंस दे दे जहां पे लिखा हो बाहर निकलना जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अल्लाह की लानत नहीं है। कोई नहीं, मैं इसको सर्च करूंगी और अब आप सर्च करेंगी। सी, ऐसी 15 मिनट ज़्यादा की है, सिंपल सी बात थी। आई विल रिसर्च ऑन इट एंड कम बैक। मैं आपके छोटे दिमाग के लिए रिसर्च करूंगी, मेरे दिमाग में बात फिट है। यार साहिल, इससे बात कर ले यार, मैं जा रहा पागल की वजह। तो देखा दोस्तों,
यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।